नमस्कार। नमस्कार सर। आज इस IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एल्यूमनाई कनेक्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है कि हम जो हमारे एल्यूमनाई हैं, BGMC डिपार्टमेंट के जो एल्यूमनाई हैं, उनसे अक्सर बातचीत करते हैं और उस बातचीत का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे नए छात्र हैं वो उनके अनुभव को शेयर कर सके, वो समझ सके कि जिस पढ़ाई को यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, जब वो फील्ड में जाएंगे तो उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसलिए हम उन अपने एल्यूमनाइज को आज आमंत्रित करते हैं सब एल्यूमनाई कनेक्ट प्रोग्राम में, जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से ये जो कॉलेज लाइफ होती है उसको और बेहतर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उससे और बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ राजश्री सिंह और खुशबू सिंह। राजश्री और खुशबू दोनों ने ही BGMC से लास्ट ईयर पास आउट किया है और इस वक्त दोनों ही काफी अच्छी पोजीशन में है। राजश्री अभी फिलहाल इस वक्त डिजिटल हेड है और डिजिटल हेड हैं और साथ ही साथ एंकर भी हैं, एंकरिंग भी करती हैं। वो अमर भारती एक्सपोज इंडिया जो ग्रुप है उस चैनल पे। साथ ही खुशबू हमारे यहाँ भी BGMC की छात्रा थी और ये अभी जी टेलीविजन नेटवर्क जो है वहाँ पर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही हैं। कई बार कई कार्यक्रमों में पर्दे पे भी दिखाई पड़ती है, स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ती हैं। वेलकम टू यू बोथ ऑफ यू, राजश्री एंड खुशबू, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर श्री अभिन्न बख्शी भटनागर जी और BGMC डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर अनिल निगम जी। डायरेक्टर सर, आप मौजूद हैं? आई एम ऑडिबल? जी, यू आर वेरी मच ऑडिबल। सो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे जो आज के एल्यूमनाई हैं इस प्रोग्राम के, उनका वेलकम करें। Thank you Dr. Amit, and it's my good morning to all. It's really it's a privilege for me that I am welcoming my alumni, as this is the tradition of the IMT group of colleges that we always have alumni connect, and we are trying to organizing this event every month. So first of all, I really express my vote of thanks to our honorable MD sir for giving such a wonderful opportunity to us. Apart from that, I welcome my all directors, deputy directors, deans, HODs of IMT group. Apart from that, I am heartily welcome my BGMC dean, Dr. Anil Nigam Saab, for conducting such a very good event and producing such a wonderful alumni. So today it's the happiest day for us that we have two alumni with us. So I welcome Rajshri Rajput. She is a digital head, and I also welcome Khushbu Singh, the production executive of G News. So all the faculties and the members are happy when we have such a wonderful people with us as alumni. So these are our students. I also extremely thankful to Amit ji for organizing such a wonderful program. I welcome my other deans, Dr. Anshul Sharma, who is heading BBA and BCA, Dr. Vibha Singh, who is the dean for BCom, all my head of the departments, Mr. Somesh, Jitendra, Amit ji, and Pratik, and last but not least, my dear faculty members and my dear students. The main aim of this webinar is that the alumni connect is very important, because the alumni is the only, we can say it's a mirror which shows us the real where we are and where we want to go. So today, not taking much of the time, I hope they will share their experience in this webinar, that how IIMT is important for them. So the juniors, the students, those who are in second year and third year, they will learn from their experiences. Once again, thanks to whole IIMT group of colleges for conducting such a wonderful program. Thank you. Thank you very much, sir. As you told that alumni are the mirror of the college. They are the moving brand ambassador of the colleges. Wherever they go, they represent their colleges. So
It's really great opportunity to welcome such alumni who really carved their place in the professional field. And now we have Dr. Anil Nigam ji. Sir, I would like to request you that please say something on this occasion. थैंक यू अमित जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। ये बहुत ही एक्चुअली खुशी का अवसर है कि मेरे जो 2020 बैच के जो पास आउट हैं, खुशबू और राजश्री, दोनों लोग एक ही बैच से हैं और दोनों की ही अपनी अपनी खूबियां रही हैं इस एकेडमिक सेशन में। जो टोटल इनका सेशन रहा वो 3 इयर्स का जो बीजीएमसी डिग्री कोर्स था, उसमें अपनी अपनी दोनों की विशेषताएं रही हैं। जैसे कि राजश्री जो है अपना जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं, खास तौर से जब भी कोई ऐसा मौका हो, जब कोई क्लब की एक्टिविटी हो रही हो, कॉलेज की एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो फ्रेशर पार्टी हो, चाहे फेयरवेल पार्टी हो, या कोई मीडिया फेस्ट हो, या कोई और क्रिएटिव आरा हो, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना एक बहुत अच्छी खूबी रही है। और निसंदेह मुझे लगता है कि वो जो इनकी एक्टिविटी है उसको कॉलेज याद रखता है, इनके साथी याद रखते हैं, इनके जूनियर्स याद रखते हैं। उसी तरीके से खुशबू सिंह की जो विशेषता रही वो ये रही कि वो एकेडमिक में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जिस तरीके से उनकी भागीदारी रही और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, दैट इज अप्रिसिएबल। और मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं खुद के तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं, प्लस जो है जो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, है ना, वो जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान जरूर उनको भी कहीं ना कहीं वो चीजें इंस्पायर करती। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे देख करके लगा कि जो है इस तरीके की एक्टिविटीज में जो है जरूर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा अलुमनाई कनेक्ट है, इसको जो शुरू करने का उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो मेरे बहुत मेरे लिए सारे प्री स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो एक बार कॉलेज से कनेक्ट हों, अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताजा करें, कैंपस में यादों को ताजा करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पल को ताजा करें, प्लस कैंपस में उनका जो अनुभव रहा है उसके बारे में कुछ शेयर करें, और कम से कम जो उनका कैरियर है, जिस क्षेत्र के लिए वो इस कोर्स का चुनाव किया है, उस कोर्स के बारे में और उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जिस तरीके से उनको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, है ना, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, वो किस तरीके से वो हेल्पफुल होती हैं, वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो उनके जो कहना चाहिए कि उनका जो जानकारी है, नॉलेज है, उसको शेयर करें। मुझे लगता है ये सब करने से कहीं ना कहीं जो है वो तो जहां अपने पुरानी यादों को ताजा करके एंजॉय करेंगे उन मोमेंट्स को, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो इनके जूनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन चीजों से इंस्पायर होंगे और उनको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में जो मतलब जिनकी शुरुआत होने वाली है वो कैसा करेंगे, और जिनको अपने कैरियर में अपनी शुरुआत करनी है वो कैसे उस तरीके के एफर्ट्स करेंगे और किस तरीके से वो एफर्ट्स उनके लिए जो है बेनिफिशियल होंगे। तो मैं एक बार IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ओर से मैं अपने जो है एक्स स्टूडेंट्स और का मैं जो है वेलकम करता हूं, और मैं अमित जी आपसे चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डीन सर। आपने जैसा बहुत सही बताया कि जो एल्यूमनाई हमारे साथ आज जुड़ते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि जो अभी हमारे जो दूसरे छात्र, जो दूसरे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, वो उन एक्सपीरियंस को सुन करके समझ सकें कि किस तरीके से वो खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, और वो क्या चीज़ें हैं जिनको डेवलप करने से उनको प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज़्यादा फायदा होता है।
तो अब मैं सीधे रुख करना चाहूँगा हमारे जो एलुमनाइज आज जुड़े हुए हैं उनसे, उनकी तरफ। और जैसा कि हमारे साथ आज जुड़ी हुई है राजश्री राजपूत। राजश्री, जैसा कि अभी सर ने ही बताया कि काफ़ी एक्टिव रही थी और तमाम जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी कॉलेज में उनमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती थी और उसका फ़ायदा भी इन्हें मिला है। जैसे ही इन्होंने पास आउट किया वैसे ही इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में। ये फिलहाल डिजिटल हेड हैं अमर भारती एक्सपोज इंडिया चैनल में, जो पूरा मीडिया ग्रुप है उसका जो डिजिटल कंटेंट है वो हेड करती हैं, साथ ही एंकरिंग भी करती हैं। तो राजश्री, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभव रहा है आपका? कॉलेज की दुनिया आपने देखी और अब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, क्या महसूस कर रही हैं? कितना अंतर आया है जिंदगी में? सबसे पहले तो मैं सर आपका नमस्कार करना चाहूंगी कि आपने एज ए एलुमनाई मुझे चुना, मुझे बोलने का मौका दिया। कॉलेज सर सपोर्ट सिस्टम रहा है हमेशा से, और मैं जहां गई हूँ वहां हम वहां से उड़ान भरते हैं पहली बार जहां हम पढ़ाई करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेज तो हमेशा ही एक स्ट्रेंथ रहा है कि मैंने वहां से पढ़ाई की, आगे बढ़ा, छोटे से शहर से आई, IMT जैसे कॉलेज में पढ़ाई की, मैंने बहुत सारी चीजें सीखा, आपसे सीखा। आपने हमेशा कहा कि प्रैक्टिकल चीजों को आगे रखना है, मैंने उसी चीजों को आगे बढ़ते हुए रखा। एक एक दिन, एक एक पल आप सीखते हैं, हर जगह जाते हैं, आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, सामने रखते हैं। जैसे कि सर मैं कहूंगी कॉलेज तो हमारा सपोर्ट सिस्टम रहा ही है, हम जहां जाकर अपने कॉलेज को आगे प्रेजेंट करते हैं, हमारे कॉलेज का नाम होता है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं डिजिटल चैनल को हेड कर रही हूँ, डिजिटल की दुनिया में बैठी हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज के टाइम में डिजिटल एक क्रांतिकारी बन चुकी है। डिजिटल से इंसान कहीं भी आगे बढ़ सकता है। अब जैसे कि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि अब एक छोटे से बच्चे को जो अभी एक छोटे से गीत से, बचपन का प्यार से, वो फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, उसकी चीजें बन जाती है। वो एक छोटा सा जिसके पास खाने को नहीं होते, रहने को नहीं होता, लेकिन आज वो बादशाह जैसे बड़े स्टार के साथ बैठता है, गाता है। और मैं बात करूं तो रानू मंडल की भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। तो कई ऐसे देश हैं, चाहे बिहार ले लें, चाहे यूपी ले लें, चाहे कोई भी देश ले लें, तो वहाँ डिजिटल मीडिया ही ऐसी प्लेटफॉर्म है जो छोटी छोटी चीजों को वायरल बना के उसको बड़ा करती है। तो अगर हम बात करें कि चैनल्स में और डिजिटल में अगर फर्क है, तो डिजिटल अपने आप में बहुत बड़ा है, आपको मौका देती है कि आप कह सकते हैं, अपनी चीजों को रख सकते हैं। और मैं अगर बात करूं पत्रकारिता की, तो सर जर्नलिस्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको जब तक आप पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको चीजें की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ या कैमरे के सामने भी बैठी हूँ या लिखना है, तो बिना नॉलेज का आप बोल नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट की, विषय की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होता है तभी आप बोलते हैं। आप कहीं भी जाते हैं रिपोर्ट में, सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर फील्ड की, तो फील्ड पे उतरते हैं, फील्ड पे जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए या कहीं भी, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे अपने जूनियर्स को बताना चाहूंगी, और लोगों को मैं डराना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया है, मैंने देखा कि किस प्रकार चुनौतियां होती हैं। आपको सराहा भी जाता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं भी बोलते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि आप जब वहां जाते हैं तो फुटिंग होती है, आपको घेरा जाता है, आपके लिए कई चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप वहां से अगर रिपोर्ट लेकर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो आप एक रियल जर्नलिस्ट हैं और आपको सराहा जाता है। सरकार भी नहीं रोकती इसको सराहने से। जैसे कि अभी मैं बात करूं सर कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिजिटल मीडिया का अवार्ड लेकर आई हूँ, एज अ डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंट का मुझे अवार्ड मिला है। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से काम करते हैं, आपका चैनल आपको सराहता है। शायद मुझे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन आते के साथ ही मुझे 3 मंथ्स के बाद मुझे डिजिटल हेड बनाया गया। मुझे भी चीजों को देखना पड़ता है, कुछ नई चीजों को बाहर लेके आना पड़ता है कि आज क्या करें, आज क्या करना है, आज का टॉपिक क्या है। मेरे खुद जो सहयोगी हैं, जितने सारे काम करते हैं बच्चे, मेरे अंडर 40 लोग काम करते हैं। 6 संस्करण है हमारा, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, गुड़गांव और दिल्ली में और ITO। तो मैं सारे डिजिटल को मैं देखती हूँ, मुझे खुद सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी। मैं बार बार कहूंगी अपने जूनियर्स को और सारे लोगों की, जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि पेपर पढ़ना चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास
नॉलेज नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी सर, अभी जैसे कि बात करते हैं नए आने वाले दौर की, तो मैंने एक चीज और सीखा कि मैंने डिजिटल जर्नलिज्म और जर्नलिज्म, अभी मैंने एक लखनऊ में हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें हमें बुलाया गया था पुलिसिंग। तो बात करेंगे अगर जर्नलिस्ट की और पुलिस की, तो हमें पुलिसिंग की नॉलेज बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि हमारा आने वाले टाइम में फील्ड में जो चुनौतियां होती है, सर मैं ये नहीं कहूंगी कि डेस्क पे लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनके पास वो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि हर लोगों को एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, फील्ड में काम करना चाहिए, और आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको बताती हैं, बयां करती हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या करना है, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन लेवल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, चाहे वो डिजिटल हो या टीवी हो। लोग सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं। सर आपने देखा होगा, प्रज्ञा मिश्रा की बात करूं तो उसने खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, वो कहाँ से कहाँ ले आई, कहाँ गई। तो मैं हर किसी जर्नलिस्ट को बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छी पत्रकारिता करनी है तो आपको एक नॉलेज की होनी बहुत जरूरी है। रही बात, मैं बात करूंगी कि अगर बच्चे आ रहे हैं सर, जो अपकमिंग बच्चे, मैं उनको कहीं से भी डराना नहीं चाहूंगी कि वो फील्ड में काम ना करें। सर आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सही आप कह रही है। जैसा आपने बताया कि वाकई जैसा हम भी आपको बताते हैं कि ये नॉलेज इंडस्ट्री है, और जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी पढ़ाई के दौरान, वो सर्टेनली वो आउटपुट आप तब दिखाई पड़ेगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रीय आप लोगों को देख करके। कल तक जो बीइंग अ स्टूडेंट हमारे सामने छात्र होकर बैठते थे, आज जब उनका एक्सपीरियंस हम लोग सुनते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 40 लोगों की टीम आप हेड कर रही हैं, 6 एडिशंस आपके डिजिटल चैनल के चलते हैं, तो वाकई बहुत खुशी होती है कि जो हम लोगों ने कोशिश की आपको सिखाने की, बताने की, वो वाकई आपके काम आई और आज आपके ज़िंदगी में उसका फ़ायदा मिल रहा है। और वाकई खुशी की बात है कि आप दोनों हमारे बीच हैं, और यह खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि आज खुशी भी हमारे साथ हैं, खुशबू सिंह जी में है। और मैं खुशबू जो है वो खुशबू से ज़्यादा खुशी के नाम से फेमस हैं पूरे कॉलेज में। तो खुशबू, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने अपना सफ़र तय किया। आप जब यहाँ कॉलेज में थी, उसके बाद से फिर आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की और उसके बाद आपने जी न्यूज़ को ज्वाइन किया, तो किस तरह से ये सफ़र आपका स्टार्ट हुआ, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और किस तरह से उनको आपने ओवरकम किया? सर जब मैं 12th करके यहाँ आई थी ग्रेजुएशन के लिए, तब के सिनारियों में और अब के सिनारियों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। जब मैं आई थी तब मैं सच बताऊं तो मैं बहुत घबराती थी, इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। मेरे पर्सनैलिटी में खुद के मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सर, इतना डिफरेंस आया है ना। पहले मैं बोलने में इतना हिचकिचाती थी, आज मैं किसी के भी सामने कुछ भी रख सकती हूँ। मतलब ऑफिस जाती हूँ, वहां पे भी लोग ये कहते हैं खुशी है तो पॉसिबल है। अच्छा तो ये चेंजेस, मैं 1 मिनट टोकना चाहूंगा खुशी आपको कि ये चेंजेस आपने कहाँ से लाया? क्योंकि मुझे आज भी याद है वो फर्स्ट ईयर वाली खुशबू सिंह जो बिल्कुल घबराई हुई सी, बिल्कुल सहमी हुई सी मिलती थी और लगता था कि अभी डर लगता था कि कुछ कि अभी कहीं सर डांट नहीं दे। तो ये चेंजेस, ये जो चेंज बता रही हैं आप, ये किस तरह से चेंजेस अपनाए, जो यहाँ जो पढ़ाई हुई, जो क्लासेस आपने की? अपने में ये खुशबू और खुशी कहाँ से लाई आप? खुशी और खुशबू दोनों? ये सर, ये खुशी शायद मेरी पर्सनालिटी को देख के मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि ये छोटा नाम भी है और मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा नाम रखा था खुशबू, और वो चाहते नहीं थे कि नाम कुछ और हो, और घर वाले में आधे लोग चाहते थे इसका नाम खुशी हो, तो मैंने दोनों अपना लिया सर। अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी रखा नाम और अपने पेरेंट्स का भी रखा। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स थे खुशबू, मैं जानना चाहूंगा वो आपने कब रियलाइज किया कि आपको यू नीड चेंज इन योर पर्सनैलिटी, और वो किन किन एट्रीब्यूट्स पे आपने काम किया और कैसे काम किया? सर जब मैं IMT में आई थी तब मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मेरे में टैलेंट नहीं थे, मेरे में टैलेंट थी, सब कुछ, मुझे नॉलेज भी थी कि क्या बोलना है किस जगह पे, लेकिन जो हेजिटेशन होता है कहीं से आने के बाद सीधे ग्रेजुएशन में आओ तो नए लोग, हर जगह से, हर शहर से लोग थे वहां पे, तो बस एक झिझक थी अंदर, हेजिटेशन थे, उसको निकालना था। तो आपने PDP की क्लासेस भी रखवाई थी सर हमारे IMT में, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ आगे चल के।
लगभग 10 से 15 दिन लगे होंगे मुझे कॉन्फिडेंट होने में, सिर्फ सर पीडीपी की क्लासेस की वजह से। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमेशा अमित सर कहते थे हर चीजें, हर सवाल पे खुशबू खरी हो, बोलो सुनाओ। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हुई, क्योंकि हर चीज पे आप सवाल करते थे, हमारे डर को निकालने के लिए जो सवाल करते थे। सर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जब मेरा इंट्रोडक्शन आपने लिया था उस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, अपना सब कुछ बताया, लेकिन धीरे 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 मेरे अंदर पता नहीं किस चीज की घबराहट आने लगी। लेकिन हर सब्जेक्ट को करने के बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, वो मेरे लिए अब तक हेल्पफुल है, और उसी चीज की वजह से मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। एंड थैंक्स टू अमित सर, क्योंकि वो मेरे एडवाइजर थे, एडवाइजर, टीचर, फ्रेंड, जो भी कह लूं, मैं बेस्ट फ्रेंड भी कह सकती हूँ आपको, क्योंकि हम लोग आपसे हर चीजें शेयर करते थे। इवन अनिल सर की बात करूं तो उनके सामने ऐसा नहीं लगा कि हम लोग डर रहे हैं, उनके सामने चीजें नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे डीन है। वो इतने अच्छे से हमारी चीजों को सुनते थे, सॉल्व करते थे। वो चीजें सर हमारे डर को, मेरे हेजिटेशन को इतने अच्छे से निकाल दिया कि आज मैं अपने ऑफिस में हर किसी नेशनल पे, कोई अगर सेलिब्रिटी आते हैं, कोई ऊंचे पोस्ट के आते हैं, उनके सामने मैं बेझिझक कोई भी बातें अपनी रख सकती हूँ, और बिना डरे मैं सर जो सच होता है वो बोल देती हूँ। इसलिए सर भी कहते हैं हमारे ऑफिस में, खुशी आपको डर नहीं लगता? तो सर मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब सच है तो डरने की बात नहीं है सर। तो वो हमेशा ऑफिस में कहते हैं खुशी सबसे छोटी है सर, ऑफिस में मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन यही बोला जाता है अगर खुशी है तो मुमकिन है। अगर 4 लोग भी होते हैं ना सर हमारे डेस्क पे, तो मेरे हेड को ये लगता है कि अच्छा खुशी आई है, उसको ये भी दे दो, उसको वो भी दे दो, वो संभाल लेगी। सर दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई IIMT। आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि मैं IIMT का पार्ट रही हूँ। स्टूडियो से लेके रेडियो सब कुछ सिखाया सर ने, IIMT ने। सर एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, अमित सर ने हमें रन डाउन बनाना सिखाया था थ्योरी के जरिए, और सर आपने उसके लिए 1 नहीं 2 नहीं हफ्ते भर क्लास लिए। थैंक्स टू यू कि आपने उस चीज के लिए हमें इतना प्रिपेयर किया था। सर मैं जब न्यूज 18 में गई थी, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था वहां पे, तो जब हमें रन डाउन मिला था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ अजूबा मेरे सामने खोल के रख दिया गया, मुझे सारी चीजें समझ आ रही थी। सर नया सॉफ्टवेयर था तो 1-2 दिन लगता है सीखने में, उसको जनरल चीजें थी वो, लेकिन आपने जो सिखाया थ्योरी के जरिए कि कहाँ ब्रेक लेना है, कितने देर का ब्रेक होता है, किस सेगमेंट को कैसे लगाना है, उसमें क्या जरूरी होती है, सर वो चीजें मेरे सामने रन डाउन खुला और मुझे समझ आ गया। क्योंकि आपने हमें जो 1 हफ्ते क्लास दिया था, बैक टू बैक रन डाउन क्लासेस, वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा सर। थैंक्स टू यू कि आपने वो चीजें सिखाई हुई थी हमें, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में आके ऐसा नहीं लगा कि मेरे सामने कुछ अधूरा पटक दिया गया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरे सामने ऐसा कभी नहीं, चाहे वो वॉइस ओवर को लेके हो जाए, स्टूडियो की चीजों को लेके हो जाए, या फिर कुछ भी चीजें, रन बनाने, खबर लिखने से लेके सर बाइट, शॉर्ट, विजुअल, हर चीज की नॉलेज मुझे IIMT से मिल गई थी पहले ही। तो मुझे ना इंटर्नशिप में प्रॉब्लम हुई, ना आप जॉब करते हुए प्रॉब्लम हुई। सर बहुत अच्छी बात है। नारायण सर ने पढ़ाया वो चीजें भी मेरे लिए इतनी हेल्पफुल रही, क्योंकि डेस्क के साथ साथ कभी शोज हो जाते हैं, हमारे न्यूज स्पेशल शोज जो आते हैं, उसके लिए स्क्रीन पे भी काम करना हो, तो मुझे समझ में आता है कि अगर माइक लगी है, कैमरा हमारे इस एंगल पे है, तो किस तरफ देखना है, कैसे फेस करना है कैमरा को, वो चीजें मेरी क्लियर हो गई। इवन सर टीपी के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं एंकरिंग के लिए, मुझे वो टीपी पढ़ना भी अभी से ही आता है, क्योंकि कॉलेज में हमें उस चीज की भी प्रैक्टिस करा के हमें प्रॉपर निखार के भेजा गया था उस चीज के लिए, कि आप अगर स्टूडियो में बैठे हो तो आपको टीपी पढ़ना भी आना चाहिए। तो वो चीजें मेरी साथ ऐसा था कि इंटर्नशिप में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे लिए बहुत न्यू है कुछ भी। बाकी तो सर जर्नलिज्म जैसा फील्ड है, उसमें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके लिए तो मैं पूरी उम्र पढ़ सकती हूँ, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए नॉलेज के लिए मैं अभी भी कंटिन्यू रखती हूँ अपनी पढ़ाई को। सर वो पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकती जर्नलिज्म में हो तो, लेकिन जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे कॉलेज में, जो मैंने वहां सीखा, वो मेरे लिए अभी मीडिया इंडस्ट्री में आके इतनी हेल्पफुल रही है सर, कि मुझे हमेशा हर चीजों के लिए मैं खुद को तैयार रखती हूँ कि अगर मुझे कुछ टैकल करना हो तो मैं आराम से कर सकती हूँ। अनिल सर की बात बताऊंगी सर, वो हमेशा कहते थे पत्रकार को एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। सर वो चीजें मुझे हमेशा याद आती है, अगर मैं रोड पे भी निकली, कुछ चीजें दिखती है सोशल चीजें जो न्यूज में ले सकते हैं, तो वो चीजें सर, वो कीन ऑब्जर्वेशन वाली चीजें मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहती है, जो अनिल सर ने मुझे सिखाई थी कि आपको एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो वो चीजें, आपकी बातें, बाकी सारे फैकल्टीज की बातें, सर वो चीजें हमेशा हमारे फील्ड वर्क में हमेशा काम आती है। और हमेशा वो फ्लैशबैक जो समझते हैं आप, फ्लैशबैक की तरह अगर कुछ नया आता है तो लगता है अच्छा IIMT में तो ये सर ने पढ़ाया था, तो वो फ्लैशबैक हमारे साथ अभी तक हो रहा है कि जो हमने पढ़ा था वो फ्लैशबैक में हमारी हेल्प कर ही रहा है। एग्जैक्टली आप बहुत सही बोल रही हैं खुशी।
और जो जूनियर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपके, जो नए स्टूडेंट्स, हाँ जी उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि जो बातें क्लासरूम में हम लोग बताते हैं या स्टूडियोज में या आपसे यूं ही बातचीत के दौरान जब सर, कभी वो आपसे ऐसे बहुत ही, इम्पोर्टेंट है। मुझे जब मैंने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो मुझे हाँ ये हाँ रियलाइज हुआ कि सच में जो चीजें सर बताते थे कि यहाँ ध्यान दे लो, वहाँ प्रैक्टिकल चीजें ही काम आएंगी। सर एग्जैक्टली वही हुआ, वो प्रैक्टिकल चीजें ही मेरे हेल्प कर रही हैं अब तक। वो कोर सब्जेक्ट ऑब्वियसली सर वो जरूरी है आपके एकेडमिक्स के लिए, आपके मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है। सर जब मैं सर्टिफिकेट अपने देती हूँ तो सब लोग ऐसे देखते, खुशी इतने मार्क्स, तो मैं बोलती हूँ जी सर मैं एकेडमिक्स में भी अच्छी थी। तो उस चीज को लेके सर एकेडमिक्स से लेके प्रैक्टिकल सारी चीजें जरूरी होती है। तो सर मैं अपनी जूनियर्स को यही बोलूंगी, ये नहीं कि कोर सब्जेक्ट को साइड कर दिया, वो भी बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी है वो भी। इवन प्रैक्टिकल स्टूडियो हो गया, रेडियो, अगर आप रिपोर्टिंग के लिए हमें आईएमटी से भेजा जाता है, उन चीजों को ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। तो सर मैं जूनियर्स को बोलूंगी कि प्रैक्टिकल से लेके कोर सब्जेक्ट तक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके पार्ट का लाइफ का पार्ट बनने वाले हैं आगे चल के। तो हर चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली बहुत। तो हम भी यही बताते हैं आपको। चलिए, अच्छा लगता है कि जब आप ये कहती हैं कि जिन चीज़ों को क्लासरूम में बताया गया आपको, वो चीज़ें आज आपके काम आ रही हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने मीडिया की, जर्नलिज्म की दुनिया देखी है, टीवी में, अखबारों में देखा है काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस रहा है इतने लंबे सालों तक का, हम कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि जब आप फील्ड में उतरें तो आपको दिक्कत नहीं हो। और वाकई अच्छा लगता है जान करके, जब जैसे राष्ट्रीय ने भी बताया और आपने बताया कि जो चीज़ें आप सीख के गए वो कितनी काम आपके हिस्से आ रही हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी आप लोगों से बात करके मुझे समझ में आ रही है, आप भी छोटे शहर से आई, राष्ट्रीय आप भी छोटे शहर से आती हैं, तो वाकई एक मन में जब आप छोटे शहरों से आते हैं, जिनको बी ग्रेड या सी ग्रेड टाउन बोलते हैं, तो सपने बहुत बड़े होते हैं मन में, ख्वाब आंखों में, ख्वाब कई सारे होते हैं। और फिर जब आप देश की राजधानी में आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मीडिया के लिए दिल्ली जो है वो मीडिया का सागर है। बिल्कुल, अगर आपको मीडिया में काम करना है, जर्नलिज्म में काम करना है, तो आपको दिल्ली में आकर के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, सबसे ज़्यादा अवसर आपको यहाँ मिलते हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं तो दुनिया बिल्कुल बदली हुई होती है। मैं खुद भी उसको मैंने एक्सपीरियंस किया अपने समय में। हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखती है, मुझे आज भी याद है। तो इससे कैसे कोप अप आप करते हैं? राष्ट्रीय में आपसे जानना चाहूँगा, वो जो कॉन्फिडेंस आप लेके आते हैं वो पहले सेटल्ड होता है, फिर आप उसको फिर वापस उसको खुद से लड़ते हैं, उसको जिंदा करते हैं। इसमें आपका कॉलेज कैसे हेल्पफुल रहा? राष्ट्रीय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, राष्ट्रीय में अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप छोटे शहरों से यहाँ आते हैं तो ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं, आंखों में कई सारे ख्वाब होते हैं, मगर दिल्ली जो है वो देश की राष्ट्रीय राजधानी है और काफ़ी अंतर आ जाता है। जिस लाइफ स्टाइल को आप जीते हुए आए हैं और अभी आप दिल्ली में जो लाइफ स्टाइल देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो कैसे कोप अप कर पाते हैं? और कॉलेज, आपकी जो कॉलेज लाइफ रही, उसने कितना सपोर्ट किया आपको? सर अगर मैं बात करूं तो मैं झारखंड के हजारीबाग शहर से आती हूं और यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में आती हूँ जब 4 साल का सफर रहा है अभी तक। मैं 4 साल से पिछले 4 साल में दिल्ली में रह रही हूँ। तो जब मैं अपने शहर से कॉलेज आई, राजधानी में आई, तो सब कुछ नया था मेरे लिए। एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। कि आप कुछ डिसिप्लिन होता है, कॉलेज में भी डिसिप्लिन होता है, लेकिन कॉलेज का माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत अंतर होता है। फिर आप अपना जब घर बार छोड़ के आते हैं, बाहर आते सर यहाँ पे मैं शायद 4 साल से अकेली रह रही हूँ, सारी चीजें खुद कर रही हूँ। लेकिन जब कॉलेज जाते हैं तो शायद एक तरीके से जब हमें गुरु मिलते हैं, आप मिलते हैं, आपकी बात करूं या डीन सर की बात करूं या और टीचर्स की बात करूं, सबका सपोर्ट मिलता है। आप छोटी छोटी चीजों को बताते हैं कि किन किन चीजों से किस तरीके से आज कॉलेज का ही दिन है कि हम यहाँ तक आते हैं, चीजें सीखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमें कॉलेज से ही मिलता है कि आपको ये करना। सर सबसे पहली बात कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे हर जगह एक प्लेटफॉर्म मिला है। शुरू से ही मैं जब छोटी थी, मैं 3 साल की थी, तब से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू किया। तो बोलने की चूंकि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, ना ही किसी का दिल वो तोड़ना चाहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डीन सर ने मुझे हमेशा कहा
मेरे पेरेंट्स आते थे, जब भी फादर मेरे आते थे वो पर्सनली डीन सर से मिलते थे और सर हमेशा गाइड करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर आज मैं प्रिंट मीडिया में जुड़ी हूँ और मुझे पता है, मैंने कई टीवी चैनल्स में भी काम किया, मैंने जी में काम किया, मैंने इंडिया न्यूज में काम किया है, मैंने द संडे गार्डियन में काम किया है, मैं TV9 भारतवर्ष में भी काम किया, मैंने ABP में सनसनीज किए हैं। तो मैंने देखा कि किस तरीके से चुनौतियां आती हैं। मैंने सर हर जगह मैंने काम किया और मैंने देखा कि मैंने छोटी छोटी चीजों को मैंने आपको वो एपिसोड देखा था जो सनसनी, जो ABP न्यूज पे जो सनसनी में जो आप कई एपिसोड्स में आप दिखाई पड़ी थी, वाकई आपने वाकई बहुत काबिल तारीफ काम किया था। तो फिर से बधाई है आपको उसकी। थैंक यू सो मच सर। इतना आसान नहीं होता है कि आप जब वहां जाते हैं बड़ी जगहों में तो लोग सोचते हैं कि अच्छा आप कहाँ से आए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या बताना है। तो सर मैं बोलूंगी कि खुद की भी ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है कि मैं हूँ कुछ, मुझे भी जानो, मैं राजश्री सिंह हूँ, मुझे भी जान लीजिए। क्योंकि लोग, बच्चे जब आते हैं यहाँ पे, कॉलेज में आते हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको लगता है कि मुझे अंजना ओम कश्यप बनना है, मुझे श्वेता सिंह बनना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, बांसुरी आप जरूर खरीद लेते हैं। जब बांसुरी बजाता है तो आप देखते हैं कि कितना सुंदर बांसुरी बजाता है वो। सर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि बांसुरी जब बजाता है तो बहुत सुंदर बजाता है, लेकिन हम उस बांसुरी वाले को देख के बांसुरी जरूर खरीद लेते हैं लेकिन बजा नहीं पाते हैं उसकी तरह। तो मैं यही कहूंगी कि खुद को आगे रखिए, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइए, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको आगे रखिए, अपनी चीजों को बढ़ाइए, जो आपके अंदर नॉलेज है अपनी खुद की एक आइडेंटिटी डेवलप करिए कि आपको लगे कि हाँ आप कुछ हैं, आपने कुछ किया है, तो कि लोग आपको सराहें, आपकी रिपोर्ट ऐसी हो कि लोगों को मजबूर कर दे कि आप जब। सर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप रिपोर्ट बनाते हैं, कहीं भी फैक्ट के ऊपर जब रिपोर्ट लेके आते हैं जिनको लोग सराहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जब आप किसी की जिंदगी बनाते हैं, किसी को प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपको सराहा जाता है और आप एक अच्छे रियल पत्रकार बनते हैं। और एक अच्छे रियल पत्रकार से भी ज्यादा पत्रकारिता में मैंने देखा मठाधीश जो पहले चलती थी सर, चाटू पत्रकारिता जिसको कहते हैं, वो आज के टाइम में नहीं लाना चाहिए। चाहे कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहिए, जो रियल चीजों पे, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। किसी के ये नहीं कि आप इसके ऊपर बोल रहे हैं, या कुछ लोग हैं ऐसे संस्थाएं हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर देश की ही या फिर मोदी की कह सकते हैं या किसी एक की तारीफ में लगे रहते हैं, उनकी चीजों को दिखाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट जर्नलिस्ट, दिस इज नॉट पत्रकारिता। ये बिल्कुल भी पत्रकारिता के बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको खुद की चीजें आगे रखनी है, अपनी चीजों को आगे लाना है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी जूनियर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी सर कि आप देखते हैं कि जाते वक्त आप दुनिया को क्या देते, तो एक ऐश्वर्या राय है, वो कहती है मैं अपनी खूबसूरत आंखें आपको लेके जाऊंगी। तो मैं हर पत्रकार को कहना चाहती हूँ कि आप अपने देश को क्या देना चाहते हैं, जरूर सोचिएगा कि आप अपने देश को क्या देना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना चाहते हैं। मैं अपने जूनियर्स को ये समझाना चाहूंगी कि जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहली बात तो पढ़ना लिखना, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी। जैसा खुशी ने बताया कि वो कैबिनेट्स में और वो दोनों ही करती थी, और शायद मैंने जो जितना उनका देखा है, उन्होंने भी कई जगह चैनलों में काम किया है। लेकिन सब जब मैं प्रिंट मीडिया में आई तो मुझे कितनी चुनौतियों का पालन करना पड़ा। शायद मैं बहुत बैक फ्लैश में चली गई थी, मुझे लगता था कि शायद मुझे पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, जर्नलिज्म मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमेशा से शायद मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, चीजों को इनोवेटिव करना, बनाना, वो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब शायद मेरी मदर ने कहा, शायद मेरे इस फील्ड में मेरे अंकल भी, लेकिन एक मैं चीज कहना चाहूंगी खुल के, वो कहीं भी देख रहे होंगे, तो उनका सपोर्ट कभी भी मुझे नहीं मिला। मैं खुद के बल पे यहाँ तक आई और मैंने देखा कि किस तरीके से जब आप बड़े चैनल में जाते हैं, तो शायद जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आपको दबाते भी हैं, कुछ चीजें बताते भी हैं। शायद मैं रो रो के घर भी गई, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं माना। तो हमेशा कहती हूँ कि आपको हार नहीं मानना है, चाहे तो आप सीखेंगे, या तो आप हारेंगे या तो जीतेंगे, ये चीजों की। लेकिन आप सीखेंगे, हर पल सीखेंगे, हर दिन सीखेंगे, हर जगह सीखेंगे। तो हम कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं, अपने टीचर से स्टार्ट करते हैं। अमित सर आपकी बात करूं तो आपका और डीन सर की बात करूं, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप लोगों ने इतना कुछ सिखाया, बताया, गिरी संभली उठी, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ हूँ।
और आप देख सकते हैं सर, मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी कि अभी फिलहाल मुझे एक लखनऊ पुलिस कार्यक्रम में मुझे इसमें भी बहुत शायद अच्छा, कुछ बहुत देखा अच्छा। होगा कि मुझे अवार्ड मिला। तो हम इस तरीके से कार्यक्रम चलिए, करते हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत ये मेरा बधाई है। सीजन मैं है सर, और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं ये सब मेरे कॉलेज की वजह से हो पाया है, आप लोगों की वजह से हो पाया है, अच्छी शिक्षा मिलती है हमें, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम रहा है सर। दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप लोगों का कि आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और बिल्कुल मैं राशि, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख करके जब आप अपनी उपलब्धियां बताती हैं। तो जी सर। वाकई मुझे आप लोगों के का वो टाइम याद आता है जब आप लोग क्लासरूम में होती थी और जब हम लोग आपको कहते थे और आप लोग कई बार चीज़ों को अवॉइड भी करती थी, लेकिन फिर जो मेहनत आप लोगों ने की और जिस तरह से आप और खुशी आज इतनी इम्पोर्टेंट बातें बता रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है देख करके किस तरीके से ग्रो अप किया आप दोनों ने और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपने अपने फील्ड अपनी जगह बनाई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई राजश्री कि खुद की ब्रांड वैल्यू आपको बनानी पड़ती है, खुद एक अपना अपना ब्रांड खुद क्रिएट करना पड़ता है मार्केट में। और साथ ही जो आपने बताया कि जो हिम्मत चाहिए, जो लड़ने की हिम्मत चाहिए, वो कितनी ज़रूरी होती है। जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो मैं पहले भी आपको ये बात कहता था कि कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और जो प्रोफेशनल दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। खासकर तो जो नया एक इमोशनल चैलेंज आपके सामने आता है, कॉलेज में सब कुछ आपको ज़बरदस्ती सिखाया जाता है कि सीख लो सीख लो सीख लो। जी सर, जी सर। और जब आप फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ पे आपको हर जगह से बल्कि किनारे करने की कोशिश की जाती है, फिर आप उससे लड़ते हैं और अपनी जगह बना करके मजबूती से खड़े होते हैं, जैसे आज आप खड़ी हैं, खुशी आप भी खड़ी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख करके। खुशी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जब आप वैशाली से हैं, हाजीपुर से हैं जहाँ तक मुझे याद है, और आप जब यहाँ आई तो आपने किस तरह की दुनिया देखी और किस तरीके से फिर आपको लगा कि मुझे भी कुछ बनना है, अपनी जगह बनानी है? सर जब मैं यहाँ आई थी तब जर्नलिज्म में बच्चों को लगता था कि सिर्फ एंकरिंग ही सब कुछ है, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही थी कि एंकर बनना है। अंजना ओम कश्यप को देखती थी, हर किसी एंकर को देखती थी, तो दिमाग में सिर्फ यही लगता था कि जर्नलिज्म इतना ही है। जब मैं कॉलेज में आई, हर सब्जेक्ट के बारे में पता चला, तो फिर तब पता चला कि सिर्फ एंकर बनना ही सब कुछ नहीं है। एंकरिंग के पीछे जो मेहनत है और जो टैलेंटेड लोग बैठे हैं वो भी बहुत कुछ है। तब मैं सर आपको भी, जब मैं छोटी छोटी चीजें लिखती हूँ तो मैं सबसे पहले शायद आपको ही शेयर करती हूँ और आप उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि खुशी आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो सर उस टाइम पे मुझे लगा था कि एंकर बनने से पहले जो मेरे अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मेरी चीजें हैं, मैं उसको ग्रूम अप कर लूं, क्योंकि वो मेरे लिए स्ट्रेंथ बन सकती है। तो मुझे लिखना सर अभी भी बहुत पसंद है और मेरे लिखने की वजह से अभी तक मुझे सराहा जाता है। जैसे आप मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, वैसे अभी भी इंडस्ट्री में अप्रिशिएट किया जाता है। तो उन चीजों को लेके सर एंकरिंग भी रखा है मैंने कि मुझे वो भी करना है, लेकिन मैं बहुत स्मॉल स्टेप लेके आगे बढ़ रही हूँ, ताकि मैं अपनी जो कमियां हैं, जो मेरी खामियां हैं, उन पे काम करके अपने आप को और ज्यादा बिल्डअप करके तब मैं उस मुकाम पे पहुंचू। जैसे लोग अंजना ओम कश्यप को इंस्पिरेशन बना के चलते हैं, वैसे आगे चल के लोग मुझे देख के इंस्पिरेशन लेंगे कि हाँ खुशबू सिंह भी कोई एंकर है, या फिर जिस नाम से मैं जानी जाऊंगी, अभी तो नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि सर मैं बहुत स्मॉल स्टेप लेके अपने आप को बिल्डअप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता शॉर्टकट लेके कुछ फायदा होने वाला। शॉर्टकट से मैं बहुत आगे नहीं जा पाऊंगी सर। बहुत दूर तक जाने के लिए मुझे अपने आप को ग्लूम अप करना पड़ेगा, अपनी खामियों को दूर करना पड़ेगा। जो मैंने कॉलेज में भी सीखा कि तुरंत एकदम आप जैसा सिखाते थे कि हर चीजों को बारीकियों से सीखो, वही बारीकियों से सीखते सीखते मैं आगे बढ़ूंगी, खुद की पहचान बनाऊंगी। तो पहले सिर्फ एंकरिंग तक ही लगता था, लेकिन अब लगता है सर आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, मैं डिजिटल के लिए भी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं डेस्क पे टाइम निकालती हूँ, डिजिटल जो जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन चीजों के लिए भी अपनी कंटेंट देती हूँ। और उस चीजों के लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ता है सर, अलग से ऑफिस से और टाइम निकालो पढ़ो, क्योंकि अगर शब्दों का भंडार मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास कंटेंट नहीं होंगे, तो मैं ना लिख पाऊंगी ना बोल पाऊंगी। तो सर उन चीजों पे काम करी, और इन चीजों में आईआईएमटी ने इतना बड़ा रोल निभाया है सर। हर चीजों में मुझे आईआईएमटी से इतनी हेल्प मिली है कि आज मैं उन कमियों को, अपनी खामियों को दूर करने में अपने आप पे बहुत काम कर रही हूँ। उन चीजों को खुद में कॉन्फिडेंस ला पाई हूँ सिर्फ आईएमटी की वजह से, आपके और डीन सर के हेल्प की वजह से, और बाकी सारे फैकल्टीज। सर मैं वेद प्रकाश सर की बात करना चाहूंगी। जब वो जनरल हिंदी पढ़ाने आए थे तो मैं सोचती थी
सर ये संज्ञा और क्रिया क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन उस संज्ञा और क्रिया और उन बिंदी से लेके सर एक मात्राओं के बारे में सर ने जो पढ़ाया, उन चीजों को लेके सर मैं अभी भी ये याद करती हूँ कि उस टाइम मुझे वो पढ़ना पसंद नहीं था कि क्रिया संज्ञा विशेषण ये पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन वो चीजें मेरे लिए अब काम आ रही है सर। वो चीजें अभी एक मात्रा छूट जाए उसके लिए भी सर बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि हाँ इस चैनल ने एक मात्रा छोड़ दिया, गलत हो गई, नुक्ता छूट गए। तो उन चीजों से सर आईएमटी से सीखा कि मात्राएं कैसे सही करनी है। उस जनरल हिंदी की वजह से सर आज मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई है, इंग्लिश तो आपने अच्छी कर ही दी थी, और पहले स्कूल से लेके कॉलेज तक आके से सब कुछ इतना अच्छा रहा, इतनी हेल्पफुल हुई आईएमटी की पढ़ाई सर। आपका जो गाइडेंस था, अनिल सर का गाइडेंस, नारायण सर का स्टूडियो का दिया हुआ सर कॉन्सेप्ट, सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, उन चीजों को लेकर सर अब लगता है कि हाँ मैं अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हूँ। जैसा राजश्री ने कहा कि ब्रांडिंग जरूरी है खुद के पर्सनालिटी की, सर इसने बहुत सही कहा कि खुद की ब्रांड वैल्यू, अपनी पहचान दूसरों के बीच एस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी और को देखिए हम अंजना ओम कश्यप क्यों बने, मैं खुशबू सिंह भी बन सकती हूँ सर। अपनी काबिलियत को मैं दूसरों के सामने रखूं, वो मेरी पहचान होगी। अंजना ओम कश्यप को फॉलो करना वो अच्छी चीज है सर, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनकी अच्छी चीजों को सीखो, लेकिन मैं अंजना ओम कश्यप नहीं बनना चाहती। लोग ये जाने की खुशबू सिंह भी कोई है, अंजना ओम कश्यप बिल्कुल। और मैं बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि वाकई बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब इतनी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से सुन करके, कि जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया है। क्योंकि मुझे बार बार याद आता है कि अभी जिस तरह से जब आप लोग आई थी कॉलेज में, तो बिल्कुल छोटी छोटी से बच्ची ऐसी थी, और आज इतनी बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बातें आपसे सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगता है कि हाँ किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना, और आज अपनी अपनी जगह बनाई है और आगे भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम लोगों की सभी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और जरूर आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कीजिएगा। मैं अंत में आपसे इसलिए एक सवाल आपको पहले बता देता हूँ कि आप दोनों से आपके जो कॉलेज लाइफ की जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जो आप चेरिश करते हैं जिंदगी भर के लिए, वो मैं पूछूंगा, मगर अभी अंत में उसको याद करके रखिए। तो अभी जी सर। मगर उसके पहले मैं जानना ये चाहूंगा राजश्री आपसे, उसके बाद खुशबू में आपके पास भी आऊंगा, कि आईआईएमटी में हम लोग जो एकेडमिक नॉलेज तो आपको देते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हम लोग काफी एम्फेसिस करते हैं। हमारा पर्पस यही होता है कि आपकी पर्सनालिटी उससे ग्रूम कर सके। राजश्री, आप बहुत एक्टिव रही हैं। मुझे याद है कि जो भी हम एक्टिविटी करते थे उसमें राजश्री सबसे आगे बढ़ करके आती थी, और कई इनाम भी इन्होंने जीते हैं अपने जब ये स्टूडेंट थी तब। उस समय के कई सारे मेडल्स इनके पास हैं, कई सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं। डांसिंग हो या कोई भी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस हो, राजश्री में से आगे रहती थी। तो जो आपको क्या लगता है राजश्री, आपने खुद उसमें आप उतना इन्वॉल्व रही हैं, कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इनका प्रोफेशनल वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंस है? सर प्रोफेशनलिज्म में इम्पोर्टेंट है इसकी, क्योंकि मैं बात करूं कि जब शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू किया था, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। तो हर जगह उसका रोल होता है, क्योंकि जब आपके अंदर से हिचकिचाहट दूर हो जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आप बोल्ड हो जाते हैं, तभी आप चीजों को कर पाते हैं। तो मैं हर एक बच्चों को, अपनी जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगी कि उनको हर एक चीजों में, कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन 110% होना चाहिए। कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो फ्रेशर हो। आपने देखा होगा सर कि जब तक मैं कॉलेज में रही, मैंने फ्रेशर अटेंड किया, मैं कोऑर्डिनेट करती थी, तो मैं देखती थी कि क्या उनके सपनों का उड़ान, अंदर ही मन में एक होता है कि हमें इन सपनों को पूरा करना है। तो जब तक प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीजें होती हैं, कि मैं सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे एक प्रैक्टिकल चीजों के लिए सीखा है, आपने सिखाया है। तो मैं खुद भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को आगे रखना है, क्योंकि एक सेकंड के लिए आपके घर वाले भी शायद
ये नहीं चाहते कि आप जब आप करने लगते हैं तो लगता है उनको कि पीछे नहीं बेटा ये नहीं करना ये नहीं करना, वो क्योंकि डर जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों से इतना ज्यादा लगाव और प्यार होता है कि सॉफ्टनेस, जैसे मम्मी पापा इतना सॉफ्ट तरीके से बिहेव करते हैं, दुनिया ऐसी नहीं होती है सर। हमें इस दुनिया के हिसाब से खुद को डील करना पड़ता है, अपने आप को आगे रखना पड़ता है। तो अगर हम हर चीज जंग नहीं जीतेंगे और नहीं लड़ेंगे इनसे, तो शायद हम वहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी चीजों को रख नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर चीज आए, कि लोग मुझे कह ना पाए कि आपको ये चीज क्यों नहीं आती, आपको हर एक चीज। और एक पत्रकारिता में अगर आप बीजेएमसी किया है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर सारे गुण होते हैं, सारे क्षमताएं होती हैं, हर कुछ आता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। ओवरऑल हर कुछ आनी चाहिए। इन द सेंस मेरे पास शब्द नहीं है सर। जब मैं प्रिंट में आई, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं प्रिंट में आई तो मुझे लगा प्रिंट की दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं कैसे काम करूंगी, मैं क्या करूंगी। क्योंकि जब मैं सनसनी में गई तो मुझे लगने लगा, मैं वहां कुछ दिन मैंने काम भी किया, इंटर्नशिप भी किया, लेकिन सर वही लगता था कि भागम भाग वाली जिंदगी, कुछ अलग करना है, कुछ अपने आप को डेवलप करना है, क्या करूं। सर मैं एक चीज और कहूंगी कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको चीजें करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, लिखना पढ़ना, फील्ड में आना पड़ता है, तो आप जो चीज भी करते हैं वो आपको आगे काम आता है। शायद मैं यहाँ पे भी हूँ तो मैं इतने सारे इवेंट, आज की बात करूँ, वो इवेंट जर्नलिज्म इतना ज्यादा वायरल हुआ है सर। डायल 112 का पुलिसिंग का हमने प्रोग्राम किया, और हर स्टेट में हमारा एक नायक शो है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा तो या तो मैं लिंक भेजूंगी या दिखाना चाहूंगी बच्चों को कि किस तरीके से हम वो शो बनाते हैं, किस तरीके से नई नई चीजों को इनोवेट करते हैं, लाते हैं। तो बहुत मायने रखता है सर, आप जहां भी चीजें सीखते हैं, लाते हैं, तो अपने रियल लाइफ में, प्रोफेशनल में उन सब चीजों का प्रयोग होता है। और यहाँ पे भी आती हूँ तो बोलने की बात हो, या फिर जैसे सर मैंने आपको बताया कि साहित्य से मैं नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं यहाँ आई तो मैंने साहित्य से जुड़ा, मुझे लिखना पढ़ना अब अच्छा लगता है, कविताएं अच्छी लगती हैं, कवि अच्छे लगते हैं। मैं पहले उनके प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आता था, कि मेरे दिमाग से आर पार हो जाता था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। लेकिन आज मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, देखती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और खुद ही मैं इवेंट मैनेजमेंट का मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने कई इवेंट्स कराए हैं इवेंट जर्नलिज्म में भी। अभी जिस तरीके से हमने किया था सर की पुलिस और मीडिया दोनों के साथ मिलके, तो हमें उनका समझने की जरूरत है। वो हमसे रोज ही वार्तालाप होता है, हर दिन के डे बाय डे मिलना है, चीजों को कलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं बात करूं, नाचना गाना, अपने आप को आगे रखना, हर चीज आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है सर, वो आपको आगे लेके जाती है। आपको चाहे कुछ लोग उसको अपने प्रोफेशनल में भी ले आते हैं, कुछ लोग अपने उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन आपके प्रोफेशनल में उन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा रोल प्ले होता है। और मेरे जो बॉस हैं शायद मुझे इसलिए भी सबसे ज्यादा सराहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मोस्ट टैलेंटेड, आपके अंदर हर चीज है, आप हर चीज कर सकते हैं, चाहे वो लिखने पढ़ने से, बोलने से, प्रोग्राम से लेके हर चीजों को मैं उसको आगे रखती हूँ और करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो एक अलग तरह की विधा है, अलग तरह का प्रोफेशन है जर्नलिज्म जो है। और आज तो वो उसकी कई सारे एस्पेक्ट उसके हो चुके हैं। जैसे अभी आप बता रही थी, खुशी बता रही थी कि तमाम प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल अब नया प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो कई सारे वेरिएशंस हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं, मगर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जहां आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में कहीं कोई कमी है या कुछ, वो जो एट्रीब्यूट जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो उनको हम उस पर एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं कि वो आप उनको उभार सकिए, उन पे काम कर सकिए। और हमें पता होता है कि आपको इन गुणों की, इन एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रोफेशनल वर्ल्ड में। और वाकई आज देख के बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को कि आप लोगों ने उन चीज़ों पे काम किया और आज सफलता आप लोगों को मिल रही है। खुशी, मैं आपसे भी बहुत शॉर्ट में जाना चाहूँगा, इसलिए कि बस समय बहुत छोटा सा कम बचा हुआ है। आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? फिर राशि में भी आपसे ही पूछूंगा, जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? ये आपने बताया पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हम पहले दिन से आपको बोलते हैं, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। हालांकि तब कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप लोगों को समझ आता है तब याद आता होगा कि हाँ सर ऐसा बोलते थे, तो पढ़ना भी शुरू कर एग्जैक्टली। तो आप जो जूनियर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? शॉर्ट में जानना चाहूंगा मैं आपसे। सर मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर कॉलेज आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के चांसेस देते हैं तो आप अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देते हुए
प्लीज ग्रैब दैट चांस। अगर कॉलेज आपको चांस दे रही है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, तो प्लीज उन चीजों में भी, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि फील्ड में सिर्फ एकेडमिक्स काम नहीं आएंगी, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, वो भी बहुत काम आने वाला है। और हमारा कॉलेज ऐसा है सर, पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारे चांसेस मिलते थे हमेशा। प्रोग्राम कभी क्रिएटिव रारा सर, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बहुत चीजें हमारे कॉलेज ने करवाई है और बहुत चीजों में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है एकेडमिक्स के साथ साथ। तो मैं उन बच्चों को भी बोलना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं मेरी तरह, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दीजिए। जो कॉलेज पार्टिसिपेट करवाते हैं आपको फोर्सफुली, आप अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि वो आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि सर दोनों चीजें बहुत काम आती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कॉलेज अगर आपको चांस दे रहा है तो प्लीज ग्रैब दैट चांस। मैं यही कहूंगी कि क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाने वाला है वो चीजें। और अमित सर जो आपको फोर्सफुली पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको फोर्स करने पे पार्टिसिपेट मत कीजिए, खुद पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं। और आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ने बोलते हैं तो प्लीज न्यूज़पेपर पढ़िए, प्लीज कंटेंट पे अपने शब्दों का भंडार बढ़ाइए, क्योंकि वही चल के आपके काम आने वाला है। आगे चल के आपके शब्दों का जो भंडार होगा वो बोलने से लिखने तक में काम आने वाला है। बिल्कुल। राजश्री, आप क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? सर मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगी, मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगा। सर बहुत शॉर्टकट में देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मतलब मैं ज्ञान नहीं दूंगी, वरना कोई मुझे वो वाली चीज है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जूनियर्स आप बढ़िए, करिए, आगे बढ़िए और खुद को प्रूव करिए और दिखाइए कि आप IIMT के छात्र हैं। कि आप जहां भी जाएं आपको बोला जाए कि जी हाँ आप IIMT से हैं, हम IIMT से, आपको सराहा जाए, आपको बोला जाए कि हमने IIMT से पढ़ा है। तो सर वो खुद अपने आप में एक ब्रांड हो जाता है कि जब लोग कहते हैं कि आप IIMT से हैं। शायद कुछ लोग हमारे कॉलेज को जानते भी नहीं है, क्योंकि IIMT और IIMC में थोड़ा माइनस प्लस का डिफरेंस हो जाता है, तो हमें बताना पड़ता है। तो मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगी कि उठिए, बढ़िए और खुद करिए और खुद को प्रूव करिए। बस ये छोटी चीजें देना चाहूंगी, जी ने बता दिया है कि, और अपने कॉलेज को ही अपना ब्रांड बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ना सीखना पड़ेगा आपको और मेहनत करिए, जरूर आप अपनी जगह बना पाएंगे। खुशी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा। हाँ खुशी, आप कुछ कह रही हैं, जरूर बताइए। मैं ये IIMT को जानने के लिए सर, जब मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी तब मेरे कॉलेज का नाम, मेरे डीन सर का नाम जब मांगा गया था, तब मुझे इतना अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो लोग जहाँ पे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो वहां पे अपने कॉलेज को प्रायोरिटी देना बहुत, वहाँ अलग से एक सेगमेंट था, एक पेपर था जहाँ आपको अपने कॉलेज के बारे में लिखना था, जिसमें ये लिखा था कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके कॉलेज को रिपोर्ट दिया जाएगा, आपके डीन सर का नंबर मांगा जाता है, आपके डीन सर का नाम लिया जाता है, आपके डायरेक्टर का नाम लिया जाता है। तब वहीं पे मुझे लगा कि चलो मैंने अपने कॉलेज के लिए कुछ तो अच्छा किया, जो चीजें सर ने सिखाई तो मैंने उनको अपना रिजल्ट दिया है, थोड़ा ही दिया पर दिया है जरूर, क्योंकि वहां मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा नाम हुआ, वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि चलो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। और आपके साथ तो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। मैंने आपकी बात करवाई थी उन लोगों से, हमेशा कहते हैं सर से क्या सीखा, मैं हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ। मैंने बोला भी कि सर मेरे एडवाइजर थे, वो चीजें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे एडवाइजर अमित सर थे, क्योंकि वो टीचर के साथ फ्रेंड भी थे मेरे, जो मेरी चीजों को समझते थे। बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो एक एक्सपीरियंस जो आप लाइफ लॉन्ग चेरिश करने वाली हैं, कर रही हैं अपने कॉलेज लाइफ का। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मेरे अटेंडेंस को लेके। सर सेकेंड ईयर में मेरे अटेंडेंस बहुत कम थे, वो मेरे मेडिकल इश्यूज और मेरी कुछ बदमाशियां भी जो आ गई थी, मैं क्लासेस नहीं ले रही थी उस टाइम। मेरे सर 4% अटेंडेंस थी और चीज के लिए अनिल सर ने मुझे बिठा के समझाया, उन्होंने मेरे लिए 4 को 40 कर दिया था। 40% अटेंडेंस उन्होंने मेरे लिए किया कि चलो आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, आप कवर अप कर लोगे। तो वो चीजें सर जब अभी देखती हूँ ना कि अभी यहाँ भी अटेंडेंस मैटर करती है, तो यहाँ अनिल सर की तरह मेरे पास कोई 4 को 40 करने वाला नहीं है। तो उस चीजों को लेके मैं अभी ऑफिस में बताती हूँ, सर काश कोई अनिल सर होते जो 4 को 40 कर देते, तो मैं वीक ऑफ की जगह एक और ऑफ ले पाती जब भी जरूरी होता है। सर एक और चीज है जो आप हमेशा कहते थे कि आप जब उस दुनिया में जाएंगी तो आपको वो दुनिया छोड़ने का मन नहीं करेगा। सर वीक ऑफ के अलावा मेरा मन नहीं होता कि मैं इस फील्ड को छोड़ूं। मुझे उन खबरों के बीच में रहने की आदत हो गई है। और कोई कहता है ये पैशन बहुत जरूरी है, तो
मैं वो चीजें नहीं कर पाती हूँ। अब सर मुझे वही फील्ड पसंद है, मुझे हर टाइम टैकल करना बहुत पसंद आने लग गया है। तो आपने जो सिखाया वो चीजें मेरे लिए बहुत, और ये अटेंडेंस वाली चीज, दैट अटेंडेंस थिंग इज, अब वो मेरे साथ हमेशा जाती है सर, वो 4 का 40% चीज है। पैशन, बहुत आपने सही बात कही कि जर्नलिज्म के लिए पैशन बहुत जरूरी है। यहाँ वर्किंग आवर्स वैसे नहीं होते हैं 9 to 5 वाले, तो पैशन, आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। और जैसा भी राष्ट्रीय ने भी कहा था कि आप स्कूल में, कॉलेज में माँ बाप होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको केयर करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो एक एक्सपीरियंस जो आप लाइफ लॉन्ग शेयर करने वाली हैं आपकी कॉलेज लाइफ का। अमित जी मैं जरा मीटिंग से चला जाऊंगा, 1 मिनट बस मैं लूंगा, फिर राष्ट्रीय अपनी बात कहेंगे। मैं अभी सुन रहा था, मैं अपने दोनों स्टूडेंट्स को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी समझदारी मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी समझ दिख रही है, बड़ी बड़ी बातें जो करने की एक क्षमता आ गई है, जो मैं अपने हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि भविष्य में ये सारी चीजें आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है किसी भी टीचर के लिए नहीं हो सकती है कि उसका स्टूडेंट जो है मतलब बड़ा बने इन द सेंस कि मतलब उस फील्ड में कुछ काम करे और नेम और फेम उसको मिले। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब सुन करके, जो आप लोग अभी बातें कर रहे थे, बता रहे थे, और बातचीत में भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो एक जर्नलिज्म के जो है प्रोफेशनल में होना चाहिए, वो देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये बात तो तय है कि शुरू में जब तुम लोग आए होगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, राशि को भी पता है, राशि हमेशा जो है थोड़ा सा डरती थी अपने पापा को शुरू में लाने में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक ही बार हुआ होगा, फिर तो लगातार लेके अपने पेरेंट्स को लेके आती भी थी मेरे पास। वो हमेशा मिलना चाहते थे जब भी आते थे। हाँ, तो मतलब शुरू में जरूर खराब लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद सबसे बड़ा दुश्मन ये डीन है जो इस ऑफिस में बैठता है, हमेशा डांटता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब समझ आती है तो समझ में आ जाता होगा कि मकसद क्या था, है ना, उसको डांटने का मकसद क्या था या कुछ कहने का मकसद क्या था, कहीं ना कहीं दिशा दिखाना था। तो मुझे लगता है वो अब बात आपको समझ में आ रही है। उस समय ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में आए ये मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा दूसरे सेशन में जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात कर दूं। अमित जी आप कंटिन्यू रखें, है ना जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जी। राष्ट्रीय में आपके था, और जैसा भी अनिल सर ने बताया कि डांट जो है वो आपके भलाई के लिए होती है, तो वो आपको जिंदगी भर पढ़ने वाली है हम लोगों से, चिंता मत कीजिए। आप जब भी मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, आपकी डांट हमें हमेशा मिलती रहे क्योंकि वही डायरेक्शन दिखाती है सर। हाँ जी। राष्ट्रीय, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका एक्सपीरियंस। डीन सर की ही बात करना, डीन सर की ही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी, क्योंकि जब डीन सर के बारे में पता चला कि उनको प्रिंट से बहुत डर लगता था सर, क्योंकि शब्द नहीं थे, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, समझ नहीं था। तो जब पता चला कि वो क्लासेस लेंगे हमारे, तो मैं उनसे बहुत डरती थी। और जैसा कि अटेंडेंस प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर से ही काम करती थी, तो मेरा अटेंडेंस बिल्कुल ही 0 था। तो शायद फादर भी आते थे, जब भी आते थे मिलते थे। तो जब सर का जब भी क्लासेस होता था प्रिंट का, तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी। पहले तो मैंने मिस भी किया था कि मैं क्या करूंगी, कैसे क्लासेस अटेंड करूंगी, क्या समझ में आएगा, क्या सर अगर खड़े करके कुछ पूछ देंगे तो कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्लासेस भी अटेंड नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि डीन सर के बाद जब भी मैंने जितने भी क्लासेस अटेंड किए, मुझे जो नॉलेज हुआ, तो उसी की बदौलत मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक यू सो मच कि ये सब कुछ आपकी देन है। अमित सर, सबसे ज्यादा आपका बहुत बड़ा जैसा रोल रहा है मेरे लाइफ में। अभी भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बहुत कुछ सिखाया। मैं गिर चुकी थी, मुझे उठाया, मुझे सिखाया, मुझे बताया, सारी चीजें बताई, मीडिया के बारे में समझाया। तो थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। चलिए, और आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स। आज वाकई बहुत अच्छा लगा दो रियल लेडी सिंघम को अपने सामने देख करके, राष्ट्रीय सिंह एंड खुशबू सिंह। तो बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने बताई, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को इतनी अच्छी बातें करते हुए देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, लगता है कि हाँ, जो कोशिश हमारी थी वो कहीं ना कहीं सफल रही है।
वो सफल रही है। और उम्मीद है कि आप लोग जीवन में जो आप लोग जो जज्बा आज आपने दिखाया है वो हमेशा कायम रहेगा आप लोगों में। जो लड़ने का जज्बा है, जो सीखने का जज्बा है, यही सबसे ज़्यादा काम आता है पत्रकारिता में। तो इसको कायम रखिए। और आप दोनों को, राजश्री एंड खुशबू, आप दोनों को हम लोगों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके पूरे जीवन के लिए। जो हमारी जो बेस्ट विशेष हैं वो आपके साथ हैं। और आप लोग लाइफ में बहुत बहुत अच्छा कीजिए और जहाँ रहिए वहाँ अपना अपना झंडा लहराते रहिए। थैंक यू सो मच। काम करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू। और आज आप लोगों से इतनी अच्छी बातें हुई, हमारे जूनियर्स को जरूर इसका फायदा मिला होगा। और हम आगे भी इस कार्यक्रम को जब करेंगे और आप लोगों को बाद में ही बुलाया जाएगा, कई ऐसे मौके आएंगे। तो जो हमारे जूनियर्स सुन रहे हैं उनको, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं अभी और जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इनको सुनिए, समझिए और सीखिए। कल को इनकी ही तरह आपको भी अपनी जगह बनानी है। चलिए, थैंक्स अ लॉट आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।